نیب ترامیم کیس کے دوران بانی پی ٹی آئی کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر سپریم کورٹ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ بات کریں گے نمائندے راجہ محسن اعجاز سے۔ جی راجہ محسن اعجاز، آگاہ کیجیے۔ دیکھیے، بانی پی ٹی آئی کی جو تصویر ہے یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے سے متعلق تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اور سپریم کورٹ پولیس کی جانب سے تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے اور ذرائع کے مطابق کمرہ عدالت میں بائیں جانب بیٹھے افراد میں سے کسی نے یہ تصویر بنائی تھی اور کمرہ عدالت کی بائیں جانب موجود افراد سے پوچھ گچھ بھی کی گئی اور اب کمرہ عدالت میں جانے والے افراد کی تلاشی میں بھی اضافہ کر دیا گیا اور سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے رہنما شوکت بسرا نے یہ تصویر بنانے کا اعتراف بھی کیا ہے اور تاہم پولیس کی جو تحقیقات ہیں اس حوالے سے وہ بھی جاری ہیں، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک سے زیادہ جو ہے وہ تصویریں اس سلسلے میں موجود ہیں۔ دوسری طرف جو اس وقت اس کیس کی سماعت ہے وہ جاری ہے اور جو ہی یہ تصویر وائرل ہوئی اور اس کے بعد اب کمرہ عدالت میں موجود بانی پی ٹی آئی کی جو تصویر والی اسکرین تھی اسے بھی منیمائز کر دیا گیا ہے اور اب سپریم کورٹ کا جو عملہ ہے کمرہ عدالت نمبر 1 میں وہ مزید متحرک ہو چکا ہے۔ کیس کی سماعت اس وقت جاری ہے۔ بانی پی ٹی آئی بذریعہ ویڈیو لنک اڈیالہ جیل سے اس وقت سماعت میں جو ہے وہ شریک ہے۔ آج ہونے والی سماعت کے موقع پر جسٹس اطہر مین اللہ کی جانب سے یہ ریمارک دیے گئے کہ جو کیس ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور اسی سلسلے میں انہوں نے انتخابات کیس کا بھی حوالہ دیا اور یہ کہا کہ جو ہے اگر ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل ہوتا تو انتخابات پر وقت ہو سکتے۔ سپریم کورٹ کے تمام ججز نے کہا کہ 90 روز میں انتخابات ہونے چاہیے، تاہم پھر بھی انتخابات 90 روز میں نہیں ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت مختوم علی خان جو حکومتی وکیل ہیں اس کیس میں، ان کی جانب سے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کیس ناقابل سماعت ہونے کا معاملہ عدالت میں اٹھایا تھا، اس دوران آج بھی کمرہ عدالت میں بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں جن میں وکلاء کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے، پی ٹی آئی کے رہنما بھی موجود ہیں، ان کے قانونی ٹیم کے جو وکلاء ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ آج جب کمرہ عدالت میں سرگوشیوں کی آوازیں بلند ہوئی تو چیف جسٹس کی جانب سے اظہار برہمی بھی کیا گیا اور ان کی جانب سے یہ ریمارک دیے گئے کہ جنہوں نے باتیں کرنی ہیں وہ کمرہ عدالت سے باہر چلے جائیں۔ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا ایک موقع پر روسٹرم پر آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ سر عدالتی کارروائی براہ راست نشر نہیں ہو رہی۔ اس سے پہلے جب سماعت ہوئی تھی تو یہ سماعت براہ راست نشر کی گئی تھی سپریم کورٹ کے یوٹیوب چینل پر، تاہم چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کو اپنی جگہ پر بیٹھنے کی ہدایت کی گئی اور اسی طرح پھر کیس کو مزید آگے بڑھایا گیا۔ چیف جسٹس نے یہ سوال کیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا نفاذ کب ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد نیب ترمیم کی کتنی سماعتیں ہوئیں۔ اس پر حکومتی وکیل مختوم علی خان نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے بعد بھی عدالت نے اس معاملے پر کئی سماعتیں کی ہیں اور اس وقت بھی کمرہ عدالت میں نیب ترمیم کی جو سماعت ہے وہ جاری ہے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ہی نیب ترمیم کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، جس کے خلاف حکومت نے اپیلیں دائر کی تھیں اور اب ان اپیلوں کی سماعت جاری ہے اور وفاقی حکومت، پنجاب حکومت، بلوچستان حکومت اور سندھ حکومت یہ جو سپریم کورٹ کا اپیل یہ نیب ترمیم کالعدم قرار دینے کا جو فیصلہ ہے اسے کالعدم قرار دینے کے لیے، جبکہ خیبر پختونخوا حکومت سپریم کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھنے کے حوالے سے عدالت کو آگاہ کر چکی ہیں کہ وہ اپنے دلائل کی کمپوزیشن اسی نقطے پر کریں گی۔ اس وقت بھی کمرہ عدالت میں سماعت جاری ہے اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ایک بہت بڑی تعداد کمرہ عدالت نمبر 1 میں موجود ہے، جبکہ اگر سپریم کورٹ سیکیورٹی کی بات کی جائے تو آج سپریم کورٹ اچھا راجہ محسن، جب سماعت کا آغاز ہوا تھا تو ویڈیو لنک کے حوالے سے کچھ گفتگو بھی ہوئی تھی، کہا یہ گیا تھا کہ فیصلہ کیا جائے گا کہ دکھانی ہے یا نہیں دکھانی لائیو اسٹریمنگ پہ، تو وہ فیصلہ ہوا یا نہیں ہوا؟ دیکھیں، اس حوالے سے کوئی باقاعدہ نہ تو درخواست تھی، ایک یہ خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ کیونکہ عام طور پہ ہم نے دیکھا کہ جب یہ نیب ترمیم کیس اس سے پہلے سپریم کورٹ میں زیر سماعت آیا، جب یہ کیس آخری مرتبہ منگل کے روز یعنی ایک دن پہلے صرف سنا گیا تھا تو اس وقت بھی یہ کیس براہ راست نشر کیا گیا تھا، لیکن آج تمام تر انتظامات مکمل تھے اور جو کمرہ عدالت میں موجود عملہ تھا وہ بار بار اڈیالہ جیل میں موجود سپرنٹینڈنٹ جیل کے ہمراہ اس کو بار بار آڈیو ویڈیو ٹیسٹ بھی کرتا رہا۔ تو یہ خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید یہ سماعت بھی جو روٹین کی پریکٹس کے تحت براہ راست نشر کی جائے گی، لیکن جب آج سماعت شروع ہوئی تو یہ براہ راست سماعت نشر نہیں کی گئی، نہ ہی یہ جو اس کو سماعت کے آغاز میں پوائنٹ آؤٹ کیا گیا بینچ کے سامنے
जब एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने समाअत बराह रास्त नशर करने के हवाले से बात करना चाहिए मुद्दा उठाया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उन्हें उनकी नशिस्त पर बैठने की हिदायत की गई और कहा कि केस को आगे चलाएं और अब केस को मजीद आगे चलाया जाए। बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन एजाज। और आपको अहम केस से मुतालिक आगाह करें, नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत इस वक्त जारी है। दलाइल का सिलसिला भी जारी है, लेकिन नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर यह समाअत बराह रास्त नशर नहीं की जा रही है। ताज़ा तरीन जो रिमार्क्स आए हैं वो हम आपको बताते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया, इतना तवील अरसे तक केस क्यों चला, क्या आपने केस को तूल दिया? ऐसे में वकील मखदूम अली खान ने रिस्पॉन्ड किया कि ज्यादा वक्त दलाइल में दरखास्त गुजार ने लिया। और साथी जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि 1999 में नया कानून बनाने में कितना वक्त लगा था। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मार्शल लॉ के फौरी 1 माह बाद के अंदर ही कानून बना दिया गया था। बात करेंगे अपने नुमाइंदे राजा मोहसिन एजाज से। राजा मोहसिन, अब तक के रिमार्क्स जो आए हैं बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरमीम कलअदम करार देने से मुतालिक जो हुकूमती अपील है उस पर समाअत जारी है और बानी पीटीआई इस वक्त वीडियो लिंक पर अदालत में पेश हुए हैं। और आज जो चीज़ है वो ये कि ये अदालती कार्रवाई जो गुज़श्ता समाअत पर इस केस से मुतालिक बराह रास्त दिखाई गई थी, आज ये केस की समाअत जो है वो बराह रास्त दिखाई नहीं दी जा रही। आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान की जानिब से दलाइल का आगाज़ किया गया और अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नैब तरमीम केस पर होने वाली समाअत का हुक्मनामा भी तलब किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क दिए कि मखदूम अली खान साहब आप ऊंची आवाज़ में दलाइल दें ताकि बानी पीटीआई जो कि इस वक्त वीडियो लिंक पर अडयाला जेल से इस केस की समाअत में शरीक हैं वो भी आपके दलाइल सुन सकें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये सवाल भी किया गया कि क्या नैब तरमीम के खिलाफ हाई कोर्ट में दरख्वास्त अब भी जेर समाअत है। मखदूम अली खान की जानिब से अदालत को बताया गया कि कल मैंने चेक किया तो ये केस अभी तक जेर इल्तवा है। जस्टिस अतर मिनल्ला की तरफ से रिमार्क्स आए कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर हो चुकी थी। इस पर वकील की जानिब से ये बताया गया कि जी वो समाअत के लिए मंजूर हो चुकी थी। इसी दौरान नैब केस में बानी पीटीआई के जो साबका वकील थे ख्वाजा हारिस वो भी रोस्ट्रम पर आए। इस पर उनका और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मुकालमा भी हुआ। चीफ जस्टिस ने उनसे अपने रिमार्क्स में ये कहा कि आप असल केस में आप वकील थे, कल आप नहीं आए जिस पर मायूसी हुई थी, हम आपके मौक़िफ़ को सुनना चाहेंगे। और इसके साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये इस्तफसार भी किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त कब दायर हुई थी, जिस पर वकील मखदूम अली खान ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 जुलाई 2022 को ये दरख्वास्त दायर हुई और सुप्रीम कोर्ट वाली दरख्वास्त को नंबर 6 जुलाई 2022 को लगा और फिर उसके बाद जो समाअत थी वो 19 जुलाई को हुई। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि मरकजी केस पर इतना अरसा क्यों लगा। मखदूम अली खान का कहना था कि 2022 का पूरा साल दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल दिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि नैब का पूरा ऑर्डिनेंस बनाने में कितना अरसा लगा था। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने 22 अक्टूबर को इख्तियार संभाला और दिसंबर में ऑर्डिनेंस आ चुका था। उन्होंने 2 माह से कम अरसे में ऑर्डिनेंस बना दिया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि चंद तरमीम से मुतल्लिक केस सुनने में इतना ज्यादा अरसा क्यों लगा। मखदूम अली खान साहब आप भी इस केस में मौजूद थे, आप बताएं इतना वक्त क्यों दरकार था। इस पर उनकी जानिब से, ये वकील की जानिब से कहा गया कि केस काबिल समाअत होने की बहस में काफी वक्त लग गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये इस्तफसार भी किया गया कि हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा होते हुए ये केस सुप्रीम कोर्ट में कैसे लगा, क्या मरकजी केस के फैसले में अदालत ने इस सवाल का जवाब दिया था। इस पर वकील की जानिब से बताया गया कि जी हाँ, अदालत ने फैसले में इस मामले का जिक्र किया था। इसके साथ उन्होंने अदालत ने मुतल्लिका जो पैराग्राफ था इससे मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वो भी पढ़कर सुनाया। जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से रिमार्क्स में 2023 इंतखाबात केस का भी हवाला दिया गया और ये कहा कि 2023 इलेक्शन केस में ऐसी ही वजूहात पर हम 2 जजेस ने ये केस नाकाबिल समाअत कर दिया था। हमने कहा था जो केस हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है इस पर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अगर तब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल होता तो इलेक्शन बर वक्त हो जाते। लाहौर हाई कोर्ट बार ने जो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जो इलेक्शन का फैसला था इसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट हुक्म जारी नहीं हुआ था। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि इलेक्शन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया इसका ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहाँ है। मखदूम अली खान की जानिब से ये कहा गया कि मेरा ख्याल है कि वो ऑर्डर इसी नुक्ते पर इख्तलाफ की वजह से जारी नहीं हुआ था। इलेक्शन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पहले 9 रुकनी बेंच था, 2 जजों ने मुआवजत की, फिर 7 रुकनी बेंच बाकी रह गया। उसके बाद 2 जजों ने राय का इजहार किया और कहा केस काबिल समाअत नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि केस के पहले दिन कोई जज राय का इजहार करे तो वो बेंच से अलग नहीं हो जाता। इस केस में कोई जज अपनी राय का इजहार कर दे तब भी वो बेंच का हिस्सा रहेगा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने रिमार्क्स में कहा कि इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट फैसले की एक और चीज भी बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने कहा कि इंतखाबात 90 रोज में कराने लाजिम है। इसके बावजूद
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि इलेक्शन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, इसका ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहाँ है। इस पर वकील मखदूम अली खान का कहना था कि मेरा ख्याल है कि वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इसी नुक्ते पर उनकी इख्तलाफ हो गया था। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने जस्टिस अतर मिन्नत के साथ मुस्कुराते हुए मुकालमा भी किया और कहा कि आप जब मेरे साथ बेंच में बैठे थे तो हमने 12 दिन में इलेक्शन करवा दिए। आप जिस बेंच की बात कर रहे हैं, मैं खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती, उस बेंच में मैं नहीं था। इस मौके पर अभी समाअत जारी थी कि बानी पीटीआई जो कि अडयाला जेल से बजरिया वीडियो लिंक इस समाअत में शरीक है, उन्होंने वहां पर अपने इर्द गिर्द मौजूद पुलिस एहलकारों को अपने पास बुलाया और उनकी जानिब से पुलिस एहलकारों से चेहरे पर तेज रोशनी पड़ने की शिकायत की गई, जिसके बाद एहलकारों की जानिब से इस तेज रोशनी को एडजस्ट कर दिया गया। इस वक्त हुकूमती वकील मखदूम अली खान अपने दलाइल दे रहे हैं, जबकि बहुत बड़ी तादाद में जो पीटीआई के रहनुमा हैं, अरकान असेंबली हैं और जो कानूनी टीम में शामिल वकला हैं, वो भी कब्र अदालत में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन एजाज। इसके अलावा हुकूमती वकील मखदूम अली खान ने दलाइल का आगाज कर दिया है। तो अहम मामला और अहम खबर और आपको दे रहे हैं कि नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो गई है और बानी पीटीआई को बज़रिया वीडियो लिंक सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया गया है और समाअत इस वक्त शुरू कर दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम जो थी वो कलअदम करार दी थी और उसके खिलाफ फिर ये तमाम तर मामला सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत जो है वो अब शुरू हो चुकी है। याद आपको दिलाते चलें कि हुकूमत ने समाअत में वीडियो लिंक के ज़रिए गुज़िश्ता रोज़ ही जो पेशी के इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए थे बानी पीटीआई के। तो इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दें तो नैब तरामीम के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के मौके पर बानी पीटीआई जो है वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए हैं और ज़राए का ये कहना है कि अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने से मुताल्लिक़ 5 रुकनी लाजब बेंच जो है वो करेगा फैसला। समाअत के आगाज़ पर अदालती बेंच बराह रास्त नशरियात दिखाने या ना दिखाने का फैसला भी करेगा। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के वीडियो लिंक के जरिए हाज़िरी के इंतज़ामात जो है वो मुकम्मल कर लिए गए थे और हम देख भी रहे हैं कि अहम रहनुमा भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो नैब तरामीम जो है हुकूमत की कलअदम करार दे दी थी और उसके बाद ये तमाम तर मामला देखने में आया था। और आपको बताएं कि बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम कलअदम करार दी थी। अदालत ने नैब तरामीम के खिलाफ तहरीरी फैसला 15 सितंबर 2023 को जारी किया था। साबिक चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से नैब तरामीम कलअदम करार दी थी। नैब तरामीम के खिलाफ केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ भी किया था और सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किए गए तमाम नैब मुकदमात बहाल करते हुए 10 में से 9 तरामीम कलअदम करार दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के मुताबिक शुकूक को आइन के बरक्स करार दिया था। और याद आपको ये भी दिलाएं कि 17 अक्टूबर 2023 को वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये अपील भी दायर कर दी थी। और साथ ही साथ फिर तमाम तर हमने कल देखा कि जब ये तमाम तर मामला उठाया गया तो उस वक्त गुज़िश्ता रोज़ ही अदालत ने हुक्म दिया कि जो बानी पीटीआई हैं उनको बज़रिया वीडियो लिंक जो है आज पेश होने का हुक्म दिया गया और हमने देखा कि सुबह से ही इसके इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए थे। दलाइल का आगाज़ तो कर दिया गया हुकूमती वकील मखदूम अली खान की जानिब से और बानी पीटीआई को बज़रिया वीडियो लिंक सुप्रीम कोर्ट में पेश भी कर दिया गया है। तो अहम मामला, अहम समाअत और चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को भी रोस्ट्रम पर बुला लिया है और अब उनसे भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। हुकूमती वकील जो हैं वो भी रोस्ट्रम पे मौजूद हैं। तो नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो चुकी है। बानी पीटीआई को बज़रिया वीडियो लिंक सुप्रीम कोर्ट में पेश भी कर दिया गया है और नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत जो है वो इस वक्त बराह रास्त जो है नशर नहीं हो रही। तो उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच समाअत बराह रास्त दिखाने का फैसला भी करेगा। हमारे नुमाइंदे भी, हमने उनसे भी बात की तो उन्होंने भी हमें यही अपडेट किया। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लाजम बेंच इसकी समाअत कर रहा है। इस बेंच के हवाले से आपको बताएं तो जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अथर मिनुल्लाह और जस्टिस हसन रिजवी इस बेंच का हिस्सा है। बानी पीटीआई को अडयाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए पेश कर दिया गया है और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अटॉर्नी जनरल को रोस्ट्रम पर बुलाया है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान अदालत के सामने पेश भी हो गए हैं और हुकूमती वकील मखदूम अली खान भी रोस्ट्रम पर आ गए हैं। दलाइल का उन्होंने आगाज़ कर दिया है
اور جیل سپرنٹینڈنٹ اسد وڑائچ کے ذریعے فی الحال آواز اور تصویر کا ہے. اس سے قبل یہ تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی تھیں اور اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں کہ جو جیل کے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہیں اسد جاوید وڑائچ، ان کی جانب سے پہلے ہی جیل خانہ جات آفس لاہور کی جانب سے پی ٹی سی ایل کو باضابطہ طور پر سپریم کورٹ کی جانب سے سینٹرل جیل راولپنڈی میں ویڈیو لنک کے ذریعے سماعت کے لیے ضروری انتظامات کرنے کے بارے میں پہلے ہی کہا جا چکا تھا. حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. حسین بتائیے آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی دیکھیے، نیب ترامیم کالعدم قرار دینے کے خلاف حکومتی اپیلوں پر باقاعدہ سماعت شروع ہو چکی ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کا حسین آپ سے ہم دوبارہ بھی رابطہ کریں گے کیونکہ کچھ تکنیکی مسائل کی وجہ سے آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. تو اہم معاملہ نیب ترامیم کالعدم قرار دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سپریم کورٹ میں سماعت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے. اس بینچ میں جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس اطہر مین اللہ اور جسٹس حسن رضوی اس بینچ کا حصہ ہیں. حسین احمد چودھری پلیز کنٹینیو کیجیے. جی دیکھیے، نیب ترامیم کیس کی باضابطہ طور پر سماعت شروع ہو چکی ہے. حکومتی وکیل مخدوم علی خان روسٹم پر آ چکے ہیں. اٹارنی جنرل کو چیف جسٹس نے طلب کر لیا، وہ بھی روسٹم پر موجود ہیں. بانی پی ٹی آئی ویڈیو لنک کے ذریعے اڈیالہ جیل سے جو ہے وہ پیش ہو گئے ہیں. نیب ترامیم کا یہ کیس ہے، جیل سے جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل جو اسد وڑائچ ہیں، ان کے ذریعے فی الحال نشست پر آواز اور تصویر کوالٹی جو ہے وہ جانچی جا رہی ہے، کیونکہ اڈیالہ جیل میں بھی جو ہے وہ سگنل ویک ہونے کی وجہ سے جو آواز ہے اور جو تصویر جو ہے وہ اس حوالے سے ابھی اس کو جانچا جا رہا ہے. اس کے بعد باقاعدہ طور پر جو ویڈیو لنک پر پیشی ہے اس حوالے سے جو دلائل ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کے سنے جائیں گے. تاہم ابھی حکومتی جو وکیل ہیں مخدوم علی خان وہ روسٹم پر آ چکے ہیں. ان کو طلب کیا گیا تھا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اٹارنی جنرل کو روسٹم پر بلا لیا. اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان بھی جو ہے وہ عدالت میں پیش ہو گئے ہیں. لارجر بینچ جو ہے وہ انٹر کورٹ اپیلوں پر سماعت جاری رکھے ہوئے ہے. دوسری جانب جو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہیں اسد وڑائچ، ان کے ذریعے فی الحال نشست پر آواز اور تصویر کوالٹی جو ہے وہ جانچی جا رہی ہے. جو انتظامات ہیں وہ سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جو ویڈیو لنک کے انتظامات ہیں وہ مکمل کیے جائیں، اور آج جو ہے اس حوالے سے سماعت جو ہے وہ رکھی گئی تھی. اور جو بانی پی ٹی آئی ہیں انہوں نے جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بلو کلر کی جو ہے وہ شرٹ پہنی ہوئی ہے اور تمام انتظامات تو مکمل کر دیے گئے ہیں، لیکن جو ویڈیو لنک کے ذریعے جو آواز ہے اور جو تصویر ہے اس کو جو ہے وہ جانچا جا رہا ہے. اور اس کے بعد باضابطہ طور پر جو بانی پی ٹی آئی کا جو بیان ہے یا دلائل ہیں وہ سنے جائیں گے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں لارجر بینچ جو ہے وہ سماعت جاری رکھے ہوئے ہے. اور جو اسد وڑائچ ہیں جیل سپرنٹینڈنٹ، ان کے ذریعے جو ہے وہ تمام انتظامات جو ویڈیو لنک کے تھے وہ مکمل کرنے کی جو ہے وہ کوشش جاری رکھی ہوئی ہے. اور جو تصویر کی کوالٹی ہے اور جو آواز ہے اس کو جو ہے وہ جانچا جا رہا ہے. سپریم کورٹ میں جو ہے وہ سماعت کا آغاز جو ہے وہ ہوا ہے. تو ساتھ ہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو بانی پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں خواجہ حارث ان کو بلایا اور خواجہ حارث عدالت میں پیش ہوئے. چیف جسٹس نے کہا کہ کیا بطور وکیل آپ نے فیس کا بل جمع کرایا ہے، جس پر خواجہ حارث نے کہا کہ مجھے فیس نہیں چاہیے. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ تمام وکلا سے سینئر ہیں، چیف جسٹس نے خواجہ حارث سے مکالمہ کیا ہے. وفاقی حکومت کے وکیل جو مخدوم علی خان ہیں انہوں کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب ترامیم کا معاملہ جو ہے وہ زیر التوا ہے. جسٹس اللہ نے کہا کہ کیا ہائی کورٹ میں زیر التوا درخواست سماعت کے لیے منظور ہوئی ہے، جس پر حکومتی وکیل مخدوم علی خان نے کہا کہ جی اسے قابل سماعت قرار دے دیا گیا تھا. چیف جسٹس نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے نیب ترامیم کے خلاف کیس کا مکمل جو ہے وہ ریکارڈ منگوا لیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ نیب ترامیم کیس کے جو بانی پی ٹی آئی کے سابقہ وکیل تھے خواجہ حارث وہ روسٹم پر موجود ہی تھے. اور چیف جسٹس نے ان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ اصل میں کیس میں وکیل تھے، آپ کا نہ آنا جو ہے وہ مایوسی تھی، ہم آپ کے موقف کو جو ہے وہ سننا چاہیں گے. جس کے بعد عدالت نے مخدوم علی خان جو کہ حکومتی وکیل ہیں انہیں دلائل دینے کا جو ہے وہ کہا ہے. اور اس پر وکیل مخدوم علی خان جو کہ حکومتی وکیل ہیں انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز کر دیا ہے. جی اچھا حسین احمد چودھری، جیسے کہ دلائل کا جب آغاز ہوا تو حکومتی وکیل سامنے آیا، پھر اٹارنی جنرل کو بھی عدالت نے بلایا، تو کیونکہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہی درخواست گزار ہیں، تو عدالتی کارروائی کس طرح سے آگے بڑھتی ہے ذرا آپ ہمیں بتائیں، اور ان کی باری کب آئے گی، ان کو رسپونڈ کرنے کا ٹائم کب دیا جائے گا؟ جی دیکھیں، بانی پی ٹی آئی تو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہو چکے ہیں اور اس وقت عدالت کی جانب سے جو وکیل مخدوم علی خان ہیں انہیں دلائل کا آغاز کرنے کا کہا ہے. اور وکیل مخدوم علی خان نے اپنے دلائل
का आगाज कर लिया है। उससे कबल वकील जो मखदूम अली खान है, वफाकी हुकूमत के वकील, उन्होंने अदालत को एक अहम पॉइंट जो है वो बताया है। वो ये बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम चैलेंज की गई हैं और जो केस चल रहा है, उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी नैब तरमीम का केस जो है वो ज़ेरे इल्तवा है, जिस पर जस्टिस असमिल्ला ने उनसे पूछा कि क्या हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा दरखास्त समाअत के लिए मंजूर हुई है, जिस पर मखदूम अली खान ने कहा कि जी उसे काबिल समाअत करार दे दिया गया था। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नैब तरमीम के खिलाफ केस का मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो मंगवा लिया जाए। अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया है। अमूमन ये केस इस तरह होता है कि जब छोटी अदालत में केस चल रहा हो तो उसके बाद जो बड़ी अदालत है उसमें डायरेक्ट इंटरफेयर करने के बजाय पहले वहाँ से रिकॉर्ड मंगवाया जाता है और उसको पहले परखा जाता है, देखा जाता है, उसका जायजा लिया जाता है और फिर केस जो है वो आगे सुना जाता है। तो ये अहम नुकता जो है वो मखदूम अली खान ने उठाया है कि नैब तरमीम का केस जो सुप्रीम कोर्ट सुन रही है वो ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है और उसे काबिल समाअत करार दिया गया था। तो उसका रिकॉर्ड जो है वो अदालत ने मंगवा लिया है और मखदूम अली खान जो कि हुकूमती वकील हैं, उन्हें इंटर कोर्ट अपील पर दलाइल देने का कहा गया है और उन्होंने अपने दलाइल का आगाज कर दिया है। जी, हमारे साथ ही रहिएगा हुसैन अहमद चौधरी। और यहाँ पर आपको बताएं कि नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो गई है। बानी पीटीआई को बजरिया वीडियो लिंक सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया गया है। राजा मोहसिन इजाज से मजीद तफसीलात लेंगे। जी राजा मोहसिन बताएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरमीम केस की समाअत का बाकायदा आगाज हो गया है और बानी पीटीआई इस समाअत में बजरिया वीडियो लिंक पेश हो गए हैं और गुज़िश्ता समाअत पर ये अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया था कि उन्हें आइंदा समाअत पर वीडियो लिंक वो सुना जाएगा और उसी हुक्म के तहत आज उन्हें बजरिया वीडियो लिंक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश किया गया है। और इस वक्त बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में वो बजरिया वीडियो लिंक समाअत में मौजूद है और जो ही समाअत का आगाज हुआ तो सबसे पहले हुकूमती वकील मखदूम अली खान रोस्ट्रम पर आए हैं और उनकी जानिब अब दलाइल का आगाज किया जा रहा है। अभी तक ये समाअत बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर दिखाने का फैसला नहीं किया गया। आमतौर पर हमने देखा कि जब गुज़िश्ता समाअत हुई थी इस केस की तो उस वक्त ये केस बराह रास्त दिखाया गया था। तहम इस मरतबा जा रही और इस हवाले से मुमकिन तौर पर जो पाकिस्तान इंसाफ के वकला और कानूनी टीम जो एक बड़ी तादाद में सब सुप्रीम कोर्ट की कमरा अदालत नंबर 1 में मौजूद है वो इस नुक्ते को उठाएगी तो शायद बेंच ये फैसला करेगा कि क्या ये समाअत बराह रास्त दिखाई जाएगी या बराह रास्त नहीं दिखाई जाएगी। अभी तक जो अदालती कार्रवाई है उसका बाकायदा आगाज हो गया है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की एक बहुत बड़ी तादाद कमरा अदालत में मौजूद है। इसके साथ साथ इमरान खान की जो बहन है खान वो भी इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं, जबकि आजम खान सवाती, सेनेटर फैसल जावेद, सेनेटर शिबली फराज समेत जो इस केस में पीटीआई के वकील थे, ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहले चला था, ख्वाजा हारिस एडवोकेट वो भी कमरा अदालत में मौजूद है। इसी तरह सिद्दीक एडवोकेट, बैरिस्टर अली जफर और दीगर जो तहरीक इंसाफ के वकला है और जो लीडरशिप है वो भी कमरा अदालत में मौजूद है और इंतहाई सख्त सिक्योरिटी इंतजाम आज इसमें नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर भी पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के अंदर भी आमतौर पे मूवमेंट बड़ी आसान होती है, लेकिन आज हमने देखा कि जगह जगह पर सिर्फ चेक करके ही जो है वो कमरा अदालत नंबर 1 की तरफ जाने दिया जा रहा है। और अब समाअत का क्योंकि बाकायदा आगाज हो गया है और हुकूमती वकील मखदूम अली खान ने अपने दलाइल शुरू कर दिए इस केस में और जो ये तमाम जो सूबाई हुकूमतें जिसमें पंजाब है, वफाकी हुकूमत है, इसके साथ साथ सिंध हुकूमत है और बलोचिस्तान हुकूमत है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस फैसले के हक में है। गुज़िश्ता समाअत पर एडवोकेट जनरल केटी की तरफ से बाकायदा तौर पर आगाह भी किया गया था बेंच को और दीगर जो 4 हुकूमतें थी जिसमें वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत और बलोचिस्तान हुकूमत, उन्होंने नैब तरमीम के खिलाफ दलाइल देने के हवाले से अदालत को अपने दलाइल की कंपोजिशन के हवाले से आगाह किया था। और गुज़िश्ता समाअत पर जैसा कि हुक्म दिया गया था कि बानी पीटीआई को भी बजरिया वीडियो लिंक समाअत में जो है वो पेश किया जाए, तो आज जो ही समाअत का आगाज हुआ तो उन्हें बजरिया वीडियो लिंक पेश कर दिया गया है और जो है ये समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में बेंच कर रहा है। अच्छा राजा मोहसिन इजाज, जैसे कि आप बता रहे हैं कि बेंच अभी फैसला करेगा कि ये समाअत बराह रास्त दिखाई जाए या नहीं, तो कब तक फैसला मुतवक्के है?
देखिए ये कई जो मामला है, अगर वो ये मामला उठाते हैं बेंच के सामने तो उसके बाद फिर फैसला करेगा। आज खुद में बेंच ने ये मामला नहीं देखा। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सैकड़ों मुकदमात की समाअत होती है, लेकिन कौन सा जो केस है वो बराह रास्त दिखाया जाएगा, कौन सा बराह रास्त नहीं रहेगा, इसका फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही करते हैं। और आज ये केस, क्योंकि जब इसकी गुज़िश्ता समाअत में किसी तरह ने केस में हुकूमती पर, तो हमने देखा कि इस केस की जो कार्रवाई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर बराह रास्त प्रदर्शित किया गया था। हम आज ये समाअत बराह रास्त नहीं दिखाई जा रही। और इस हवाले से जो कमरा अदालत में मौजूद पीटीआई के वकला हैं, बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है, उन्होंने कहा है कि जो ही वो रोस्टरम पर जाएंगे और उन्हें मौका मिलेगा तो ये मामला और ये नुक्ता बेंच के सामने रखेंगे। और डेफिनेटली जब कोई भी बात बेंच के सामने रखी जाती है तो उसके बाद फिर बेंच ही फैसला करता है। क्योंकि गुज़िश्ता समाअत पर हमने एक मौके पर यह भी सीखा कि जब ये खत सामने आया था बानी चेयरमैन पीटीआई का, इसमें जारी से पेश होने की इस्तदा की गई थी, तो उस मामले पर भी बेंच ने जब ये खत सामने आया तो एक मुख्तसर ब्रेक ली थी 5 मिनट की। उसके बाद बेंच अंदर चला गया था। जब बेंच से मुशावरत करके बेंच वापस बाहर आया तो फिर ये फैसला किया गया था कि ठीक है, उन्हें इजाजत दी जाती है, अगर वो दलाइल देना चाहते हैं तो वो खुद वीडियो लिंक पेश हो जाएं। और इसी तरह ये अहकाम दिए गए थे अथॉरिटी के में तमाम तर इंतजाम को मुकम्मल करें और ये मेक श्योर करेंगे किसी किस्म की कोई टेक्निकल फॉल्ट ना हो, कोई डिस्टॉर्शन ना हो। और इस बात को यकीनी बनाने के अहकाम भी दिए गए थे। और आज हमने देखा कि समाज से पहले 3 मरतबा टेस्टिंग भी की गई थी। सुप्रीडेंट जेल जो है वो अडयाला जेल से इसको जो सुप्रीम कोर्ट का टेक्निकल अमला है उसके साथ मिलकर इसकी टेस्टिंग करते रहे ताकि वीडियो में या ऑडियो में किसी किस्म का मसला ना हो। क्योंकि जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने ये रिमार्क्स भी दिए थे गुज़िश्ता समाअत पर कि अगर किसी तरह की भी कोई डिस्टॉर्शन हुई या किसी तरह का भी खलल आया तो फिर ये समाअत जो है ये मुलतवी की जाएगी। और जब तक ये मामला ठीक नहीं होगा तो उस वक्त जो है ये मामला नहीं सुना जाएगा। लिहाजा मेक श्योर करें कि ये जब बजरिया वीडियो लिंक थर्सडे को यानी आज पेश हो बानी चेयरमैन पीटीआई, तो ये तमाम जो सिस्टम है वीडियो लिंक समाअत का, तमाम जो टेक्निकल इश्यूज हैं ये सॉर्टेड आउट हो और उसके बाद जो है ताकि अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। शुरू हो रहा है अदालती, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी मुल्क में मौजूद नहीं होंगे, वो 1 हफ्ते की छुट्टी पर होंगे। इसी तरह सीनियर क्रिमिनल जज भी यहाँ पर नहीं होंगे। तो ये जो आज का समाअत है इम्कान यही है कि इसे 1 हफ्ते के लिए जो है 1 हफ्ते से 10 दिन के दरमियान इसे मुलतवी किया जाएगा। और लिहाजा जस्टिस ने ये रिमार्क की थी कि हम ये चाहते हैं कि उससे पहले, उस 1 हफ्ते की ब्रेक से पहले हम मैक्सिमम हद तक इस केस को आगे बढ़ा लें। उन्होंने मखदूम अली खान जो उनके वकील हैं उनके इब्तदाई दलाइल की जो कंपोजिशन थी उन्हें कहा था कि सामने रखें। ताहम हतमी दलाइल उन्हें क्योंकि बानी चेयरमैन पीटीआई इस केस के मरकजी दरख्वास्त गुजार थी, उन्हीं की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक बेंच ने ये नैब तरमीम कलअदम करार दी थी। और अब नैब तरमीम क्योंकि कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ हुकूमत की जानिब से रुजू किया गया था और अब उस दरख्वास्त पर हुकूमती वकील मखदूम अली खान इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं और अपने दलाइल दे रहे हैं। गुज़िश्ता समाअत पर हमने ये कहा कि नैब के हवाले से इंतहाई सख्त रिमार्क्स भी देखने को मिले थे बेंच की तरफ से। और ये भी कहा गया था बेंच की तरफ से रिमार्क्स। राजा मोहसिन इजाज इस हवाले से मैं आगाह कर रहे हैं, नैब तरमीम कलअदम करा देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत का आगाज हो चुका है और बानी पीटीआई को बजरिया वीडियो लिंक सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया गया है। अहम खबर देंगे आपको, बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई एहतजाज पर थाना शहजाद टाउन में दर्ज 2 मुकदमात पर समाअत हुई। सेशन अदालत ने बानी पीटीआई की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। मजीद क्या तफसीलात जानेंगे फारूक इजाज से। जी फारूक बताइएगा। जी बिल्कुल, बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई एहतजाज पर थाना शहजाद टाउन में दर्ज 2 मुकदमात पर समाअत ली है। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने बानी पीटीआई की बरियत की दरखास्तों पर समाअत की है, जबकि बानी पीटीआई के वकला सरदार मसरूफ और मिर्जा आसिम बेग ने बरियत की दरखास्तों पर दलाइल दिए हैं। वकील सरदार मसरूफ का दलाइल देते हुए ये कहना था कि 9 मई को बानी पीटीआई गिरफ्तार थे, जबकि जब ये मुकदमा दर्ज किए गए उन्होंने ये कहा कि बानी पीटीआई ना तो मौका पर मौजूद थे और ना ही एहतजाज के हवाले से उनका कोई वीडियो पैगाम है। उनका ये कहना था कि बानी पीटीआई के पास मोबाइल फोन भी नहीं था तो वो कैसे कारकुनों को उकसा सकते थे। वकील मिर्जा आसिम बेग का ये कहना था कि बानी पीटीआई के खिलाफ FIR मजाज शख्स ने दर्ज नहीं करवाई, जबकि दफा 144 लगाने वाला मजाज ऑफिसर ही मुकदमा दर्ज करवा सकता है।
वकील मिर्जा आसिम बेग का ये कहना था कि बानी पीटीआई के खिलाफ सियासी बुनियादों पर मुकदमात दर्ज किए गए हैं, अदालत में किसी भी किस्म के शवाहिद पेश नहीं किए गए, लिहाजा बानी पीटीआई को मुकदमात से बरी किया जाए। अदालत में ठीक बानी है, पीटीआई फारूक इजाज इस हवाले से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत ने आइंदा बजट में बिजली पर सनती शोबे को 240 अरब रुपए रिलीफ देने की तजवीज़ दी है। मजीद तफसीलात क्या है जानेंगे शुएब निजामी से, बताएगा शुएब। जी, आइंदा बजट की तैयारियां जो है अपने उरूज के ऊपर हैं और खास तौर पे आइंदा बजट में जो सनती सार्फिन हैं उनको रिलीफ देने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि उन्हीं के जरिए जो है वो एक्सपोर्ट में भी इजाफा किया जाए। सनती सार्फिन का शिकवा है कि वो घरेलू सार्फिन के लिए 240 अरब रुपए इजाफी बिजली के ऊपर अदा करते हैं, जिसमें जो कमी के लिए हुकूमत ने जो है मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लिया है और इसके टैक्स जो इनका रेट है उसमें कमी करके जो सनती सार्फिन है उनको थोड़ा सा रिलीफ देने की कोशिश की जाएगी, ताकि उनकी पैदावारी लागत कम हो सके, वो अपने सामान को एक्सपोर्ट के लिए इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटेबल बना सके। जी, बहुत शुक्रिया शुएब निजामी। हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ पर आपको बताएं कि नैब तरामीम का लदम करा देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत कुछ देर में होगी। बानी पीटीआई अडियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए पेश होंगे। हाजिरी के इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे हुसैन अहमद चौधरी से। हुसैन, बताइएगा। नैब तरामीम जो केस है उसकी अहम समाअत जो है वो नैब तरामीम जो थी वो पीटीएम की जो गुज़श्ता हुकूमत थी उनकी जानिब से ये तरामीम की गई थी, जिसके खिलाफ बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। और उस वक्त की जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस उमर अता बंदियात, उनकी सरबराही ने ये जो बेंच था उसने नैब तरामीम जो है वो कलदम करार दे दी थी। और उसके बाद जो पीटीएम हुकूमत थी उन्होंने उसके खिलाफ जो नज़रसानी अपील दायर की थी वो अपीलें जो है वो अब चल रही हैं, इंट्रा कोर्ट अपीलें जो है वो चल रही हैं। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जो बेंच है, लार्जर बेंच, वो आज समाअत करने जा रहा है। गुज़श्ता समाअत पर जो दरख्वास्त गुजार थे बानी पीटीआई जिन्होंने ये नैब तरामीम चैलेंज की थी उनके हवाले से जो है ये मौक़िफ़ सामने आया था बेंच का। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा था कि बानी पीटीआई का जो मौक़िफ़ है वो सुनना जानना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने ये तरामीम जो है वो चैलेंज की थी और उनके हक़ में जो है वो फ़ैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का। और उसके ख़िलाफ़ फिर अपीलें जो है वो इस वक्त ज़ेर समाअत हैं। तो उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए थे कि जो बानी पीटीआई हैं वो चूँकि जेल में हैं और उनको पेश करना चाहिए या फिर वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो इस हवाले से हुकूमत आगाह करे। तो अटार्नी जनरल की जानिब से कुछ वक्त मांगा गया था और उसके बाद आज यानी जुमेरात की जो है वो तारीख मुकर्रर की गई थी और हुकूमत को ये अहकामात दिए गए थे और जेल हुकाम को अहकामात दिए गए थे कि बानी पीटीआई को जो है वीडियो लिंक पर पेश किया जाए और तमाम इंतजामात जो है वो मुकम्मल किए जाएँ। अडियाला जेल के जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि उन्होंने हतमी शक्ल जो है वो दे दी है इंतजामात को। 11:30 बजे समाअत जो है वो मुकर्रर की गई है, लेकिन इस वक्त अहम चीज़ जो है वो ये है कि क्या उस समाअत की लाइव स्ट्रीमिंग होगी या नहीं होगी। हतमी फ़ैसला जो है वो समाअत शुरू होने से बिल्कुल ऐन वक्त पर जो है वो किया जाएगा। अभी इस हवाले से कोई चीज़ सामने नहीं आ रही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। ताहम आधा घंटा जो है वो रह गया, बल्कि आधे घंटे से भी जो है वो कम वक्त रह गया है और 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का जो लार्जर बेंच है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में वो नैब तरामीम जो है उनसे मुतालिक जो नैब तरामीम चैलेंज की गई थी उससे मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलें सुनेगा। बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होने की हिदायत की गई थी और गुज़श्ता रोज़ जो उनके वकील हैं ख्वाजा हारिस जो कि सीनियर वकील हैं वो और जो इंतज़ार बनजोता हैं जो कि लीगल टीम के रुकन हैं दोनों जो है वो बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात करके आए हैं इस हवाले से। और जो रिकॉर्ड था जो पेपर बुक्स थी वो फराहम कर दी गई थी बानी पीटीआई को और उन्होंने कहा था कि मैं बानी पीटीआई की जानिब से ये कहा गया था कि वो ख़ुद दलाइल देंगे इस हवाले से। ताहम जो नैब तरामीम जो चैलेंज की गई थी इससे पहले उसमें ख्वाजा हारिस जो है वो बानी पीटीआई के वकील हैं जो कि गुज़श्ता रोज़ उनसे मिल के आए। तो आज की जो अहम समाअत है वो 11:30 बजे शुरू होगी। अभी तक ये नहीं बताया गया कि ये लाइव स्ट्रीमिंग होगी या नहीं होगी। जी ठीक है, अभी तक ये नहीं बताया गया कि लाइव स्ट्रीम होगा या नहीं।